Good afternoon, everyone. Ma'am, we are good to start. We have almost 125 schools joined in. Almost, I think, 118 schools have joined in. So I Okay, see meritorious schools and SOE schools joined. so I think we should start now. Yes. Good afternoon, everyone. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਸ਼ਨ ਫॉर दैट। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਜਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। Navneet, I think we should start the session. Yes, yes. Thank you, ma'am. And I welcome all of you. Thank you, Shahid sir and Harshit sir, who have joined from Avanti. Avanti is an organization who is helping us with the PACE program all over Punjab. I think all of you already know Shahid sir and Avanti, who is helping us in JEE NEET coaching. And before we start with the today's session, I just want to show one video. And also, it is a request to all the principals and teachers who have joined in. Once the session is over, you will get a link, a feedback form link, and all of you have to fill that form. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਹੈਂਡ ਇਟ ਓਵਰ, ਇਟਸ ਅ ਵੀਡੀਓ ਆਫ 1 ਮਿੰਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੋ। Are you able to hear the audio as well? No, we can't hear the audio. No, ma'am. Not the audio. 1 second, I'll just play from here. ਆ ਜਵਾਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। So, yes, this is just a reminder message for all of you that winter camps we have started. The registration is started already for the winter camps. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਕੂਲਸ ਕੋ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਕੈਂਪ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਈ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨੋਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, all the best all of you, this time we are going to crack JEE for sure। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ JEE exam crack ਹੋਵੇ। all the best and over to you Harshit sir। Thank you everyone। Okay, I will start just hello, good afternoon everyone। Is my screen visible to all of you? Yeah, it's visible। Yeah. Hello, so see, since today we have a session, so sir, it should be English or Hindi will work? ठीक है हर्षित सर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अच्छा, आज के जो सेशन के ना 2 कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट जो हर्षित सर जो हमारे जेई एक्सपर्ट हैं वो इस पे आपका सेशन लेंगे। उसमें वो आपको जेई एग्जाम के बारे में बताएंगे, भाई कितना टफ होता है। जैसे कई बच्चे बहुत डर के रहते हैं, भाई आईआईटी जाना मुश्किल है, एनआईटी जाना मुश्किल है, तो हर्षित सर वही आपको बताएंगे भाई ये अचीवेबल हमारे लिए है कि नहीं। उसके बाद क्या कट ऑफ जाता है, कितने मार्क्स एग्जाम में चाहिए। ज्यादा बच्चे डर के रहते हैं भाई जेई एग्जाम में बहुत हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि परसेंटाइल में होता है। आई गेस मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को लगता है 99 परसेंटाइल है तो 99% चाहिए, तो बच्चे काफी डर के रहते हैं। तो हर्षित सर उसमें आपको डिटेल में बताएंगे भाई परसेंटाइल को जब एब्सोल्यूट मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो 300 में से कितने नंबर चाहिए आपको जेई क्वालिफाई करने के लिए। एंड देन ही विल आल्सो शेयर कि अलग अलग कैटेगरीज में क्या कट ऑफ जाता है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ एक्चुअली जेई अचीवेबल है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इजी मीडियम हार्ड टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, कितने क्वेश्चन करने से कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे चांसेस बन जाते हैं क्वालिफाई होने के लिए। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपोनेंट आपको हर्षित सर बताएंगे। उसके बाद स्टेज 2 में हमारे फैजान सर है हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपको फॉर्म फिलिंग पे बताएंगे भाई स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसे आपको लिंक शेयर करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे टिपिकली हमने देखा कि बच्चा फाइल रीसाइज नहीं कर पाता, फोटो को रीसाइज करना है, उसके बाद कितना फी है, कब लास्ट डेट है, ये सारी चीजें आपको फैजान सर बताएंगे। तो पहले हम जेई एग्जाम के बारे में जान लेते हैं और सेकंड स्टेज में हम फॉर्म फिलिंग के बारे में जानेंगे। तो हर्षित सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्चों जैसे कि अगर आप देखोगे जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी अटेम्प्ट, वो आई थिंक आपको अगर आइडिया होगा तो जनवरी के लास्ट वीक मतलब 20 जनवरी के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 20 जनवरी 2025। तो अगर मैं कल से दिन गिनूं तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 20th जनवरी, तो वी हैव रफली 65 डेज। हमारे पास 65 डेज हैं। अब इन 65 डेज में की प्रिपरेशन आपकी बची हुई है, मतलब 65 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना, थोड़ा बहुत वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्या इन 65 डेज में हम प्रिपेयर करके क्या हम हमारा कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब आई होप अब तक थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो आपने कर रखी होगी, थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको 11th के टॉपिक्स का 12th के टॉपिक्स का जरूर होगा। अब ये बच्चे हुए जो 65 डेज हैं इनको आपको बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ताकि 20 जनवरी तक, 20 जनवरी से लेकर लगभग 30 जनवरी के बीच में आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। वो अटेम्प्ट होने के बाद आई थिंक आपके फिर बोर्ड्स एग्जाम आ जाएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट आपका आएगा अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट आएगा। अप्रैल के बाद सेकेंड अटेम्प्ट के बाद लगभग 1 महीने के गैप में के बाद फिर आपका जेई एडवांस का एग्जाम आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट है उसको आपको बहुत प्रॉपर्ली देना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम होता है आपका फॉर्म फिलिंग। अगर आप अब तक जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आधी बैटल तो जीत चुके, ठीक है। मतलब कैसे भी करके आपको फॉर्म तो फिलअप करना ही है। अगर आप फॉर्म ही फिलअप नहीं करेंगे, जेई एग्जाम में अपीयर ही नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट एक बार तैयारी करके जेई एग्जाम्स को देने जाना है। आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरह की एग्जाम होती है, ठीक है, क्या उसमें चैलेंजेस होते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला काम आपका है फॉर्म फिलअप करना। उसकी भी लास्ट डेट आई थिंक 10 दिन ही बचे हैं। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो आज के सेशन के बाद जरूर फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि अब आखिरी के 10 दिन बचे और फॉर्म फिलअप करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अब बचे हुए दिन में हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, आप खुद कैसे हेल्प अपने आप की करोगे, वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, टोटल हमारे पास देखो पहली जो चीज है, आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे, जैसा कि अब तक मैं पिछले अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत सी बार क्या होता है, बच्चा स्ट्रेस में काफी रहता है कि जेई का एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफ है,
शायद हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर उसके जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन वो देख के एकदम घबरा जाते हैं कि नहीं ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन है, हमको ना स्कूल में हमने कवर किया ना हमने कभी इसकी तैयारी करी है, तो शायद हमसे ना हो पाए। तो इस तरह की नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको अगले 65 डेज में पहली बात तो रिलैक्स रहना है, ठीक है, प्रॉपर अपने ऊपर भरोसा रखना है कि ठीक है हमें तैयारी करना है, जो भी रिजल्ट आएगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगले 65 डेज हमें अपनी तरफ से प्रॉपर तैयारी करना है रिलैक्स होके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी रिलैक्स्ड, ज्यादा बिना स्ट्रेस लिए कि अच्छे से तैयारी करो और खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। और तैयारी करने का भी सही तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। और अगर आप सही स्ट्रेटेजी से जाओगे, सही तरीके से जाओगे, सही मेथड से अपनी अगर तैयारी करोगे अगले नेक्स्ट 65 डेज या फिर जो भी अब तक आपने तैयारी करी है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एक अच्छा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। बीच में अगर आपने मान लो होप लूज कर दी तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा मेन टारगेट ये है आपके साथ डिस्कस करना कि जो 65 डेज में हमको कैसे करके 95 परसेंटाइल अगर प्लस स्कोर करना है, तो 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिएंगे, ठीक है, और कितने मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी, क्योंकि बहुत सी बार इसका नॉलेज हमें रहता नहीं है। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, कट ऑफ भी क्लियर करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं जेईई एग्जाम में, और किस कैटेगरी को कितने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और उतने मार्क्स में आपको क्या रैंक मिल सकती है, ये बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन है। आज हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, फिर जब एक बार आप मार्क्स लेके आ जाओगे तो फिर मैं आपको, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फिर किसी दिन हम सेशन रखेंगे जहां पे आपको बताऊंगा कि इतने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये मैं 2023 का डेटा दिखा रहा हूं, मैं लास्ट टू लास्ट ईयर का। 2023 में यहाँ पे 3 कॉलम आप देख पा रहे होंगे, जेई के मार्क्स, परसेंटाइल, और उस मार्क्स पे, उस परसेंटाइल पे अप्रोक्सीमेटली एवरेजली क्या रेंज आई, रैंक आई थी, ठीक है। आपको पता है जेई का जो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 100 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, 100 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। तो जिनका स्कोर 240 के अराउंड आया था, मतलब लगभग 1000 के अंदर उनकी रैंक आई है आउट ऑफ 300, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने 95 परसेंटाइल क्रॉस करना है, तो 95 परसेंटाइल भी अगर आप क्रॉस कर जाओगे तो ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी के कट ऑफ भी क्लियर हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो अगर ये 2023 का डेटा अगर अपन देखें, तो हम यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको, देखिए 95 परसेंटाइल के अराउंड प्लस में अगर आप बात करें, तो स्कोर यहाँ पे देखेंगे आप 105, 112, 116, 121, ये आउट ऑफ 300 है। आउट ऑफ 300 मार्क्स इतने स्कोर पे 2023 में ये परसेंटाइल आया था और ये रैंक आई थी, ठीक है। और कट ऑफ भी उस साल 90 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी। कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? ये सर ओवरऑल ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 121 या फिर 116 मार्क्स लेके आता है, तो उसके 2023 के डेटा के हिसाब से 96 परसेंटाइल आए थे और उसकी जेईई मेंस की रैंक ये आई थी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा, ये इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हर्षित सर ने बताया कि 300 में से अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 95 परसेंटाइल बन जाएगा, विच इज वेरी गुड स्कोर। 95 परसेंटाइल पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको एनआईटी मिल जाएगा, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी का, और अकॉर्डिंगली जैसे अब एससी बच्चा है, ओबीसी बच्चा है, तो ये नंबर और भी कम आपको चाहिए। तो ज्यादातर बच्चे जो अभी तक घबरा रहे होंगे कि भाई, क्योंकि परसेंटाइल के अगर आप मार्क्स नहीं देखोगे, सिर्फ परसेंटाइल देखोगे, तो आपको लग रहा है 96 परसेंटाइल है, तो बच्चे परसेंटाइल को समझते हैं कि ये परसेंटेज है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए आपको। 120, 130 स्कोर में यू विल गेट 95 परसेंटाइल। जी ठीक है, हर्षित सर यू कैन गो अहेड। हाँ, तो ये 2023 का डेटा था। उस तो लास्ट ईयर जो 2024 में थोड़ा पेपर रिलेटिवली इजी आया था, 2024 में तो थोड़ा इजी पेपर आने के कारण, जैसे फिजिक्स का जो लेवल था वो लगभग आपका जो एनसीईआरटी हम बोल सकते हैं स्कूल लेवल आ गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा रिलेटिवली लोअर लेवल पे आया था, तो उसके कारण थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर। तो लेकिन कट ऑफ थोड़ा बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर का लेवल ऑन एन एवरेज रहा तो आप एवरेज इतना मान सकते हो, अगर आपने 120 या 130 प्लस स्कोर कर लिया तो आप सेफ जोन में आ जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि 130 अगर मुझे स्कोर करना है या 120 स्कोर करना है फॉर एग्जांपल मिनिमम जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, राइट। तो अगर 120 को अपन 4 से डिवाइड कर दें
नियरली 30 क्वेश्चंस। तो टोटल अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो मतलब आप एक अच्छे परसेंटाइल में आ जाओगे। 30 to 35 क्वेश्चन को अगर अपन 3 सब्जेक्ट में बांटें तो नियरली 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। तो 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट एक बहुत अच्छा आपका स्कोर है कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको पता है कि जैसे लास्ट ईयर तक तो हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा डेटा चेंज, मतलब इस बार थोड़ा उन्होंने करेक्शन मतलब चेंज कर दिया है। आपको इस बार लगभग 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, उन 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेते हो करेक्टली, ठीक है, तो आपका स्कोर 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मतलब 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन मतलब 120 तक आप पहुंच गए। तो अब देखो कभी कभी क्या होगा, किसी बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, तो केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ स्ट्रांग होगा। अब मान लो अगर केमिस्ट्री थोड़ा इजी आ गया रिलेटिवली, आपने अगर सारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपको याद है, ऑर्गेनिक का याद है, थोड़ा सा केमिस्ट्री जल्दी भी हो जाता है, तो बहुत सी बार बच्चे देखा है कि 12 to 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 25। फिजिक्स में भी लगभग अगर पेपर रिलेटिवली पिछले 2-3 सालों से पेपर का लेवल बहुत लो आ रहा है, तो अगर थोड़ा बड़ा भी तो लगभग बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और मैथ्स मान लो थोड़ा टफ भी आता है, उस मैथ्स के टफ पेपर में भी अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट कर ले तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट में बराबर लाने हैं या फिर ओवरऑल आपको परसेंटाइल गिना आएगा। तो तीनों सब्जेक्ट का मिला के जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो आपको सुधारना है। अगर ओवरऑल परसेंटाइल 95 क्रॉस करना तो 30 to 40 क्वेश्चन अगर आप क्रॉस कर लोगे तो आपका परसेंटाइल सुधर जाएगा। ये अगेन 2023 का डेटा था। अगर पेपर रिलेटिवली थोड़ा अगर इजियर साइड पे है तो थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है, नो डाउट। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे ±2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, ये अगर आपके माइंड में रहेगा कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे मेरे पास जो पर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल मैथ्स में 25 का है, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्न आए, उसमें से मुझे प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके 10 क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि 7 क्वेश्चन आपने मैथ्स में किए, केमिस्ट्री में थोड़े बढ़ा दिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन क्रॉस कर गए तो आपको ओवरऑल परसेंटाइल सुधर जाएगा। ये मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ कि जेई एडवांस के लिए उन्होंने कट ऑफ क्या रखा है। जैसे 2023 की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 90 परसेंटाइल। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 95 परसेंटाइल के लिए आपको 120 प्लस स्कोर करना है, तो 90 परसेंटाइल के लिए तो और कम स्कोर करना, 100 मार्क्स, ठीक है। ये 2023 का कट ऑफ था, तो ये 100 मार्क्स के अराउंड आपको स्कोर करना। जैसे आप यहाँ पे अगर देखना भी चाहो तो 90 परसेंटाइल पे देखो 82 मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है, 2023 के हिसाब से। 24 में कट ऑफ बढ़ा था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। 2023, 22 और 21 ये पिछले 4 साल के कट ऑफ के अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस बार इंक्रीज होगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इस बार चेंजेस बहुत सारे एनटीए ने लाए। लास्ट ईयर पेपर रिलेटिवली थोड़ी बहुत चीजें हो गई थी कि उन्होंने एक ही स्लॉट में बहुत बच्चों को दे दिया था कि उस स्लॉट का पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया था, तो उसके कारण कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए थे। थोड़ा सा डेटा में बहुत वो हुआ था, इसलिए मैं 2024 का डेटा अभी आपके साथ वैसा शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 2020 से लेकर 23 का डेटा ये बहुत थोड़ा बहुत एवरेज एक्यूरेट भी है कि आप इसके अराउंड अपना मान सकते हो जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी तो एडवांस के लिए लगभग 90 परसेंटाइल अगर आप क्रॉस कर गया तो आप एडवांस के लिए अपीयर कर सकते हो। जो बच्चा जनरल ईडब्ल्यूएस में आता है, मतलब जनरल में जिसकी फैमिली इनकम लोअर है, उसका परसेंटाइल देखिए बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। ओबीसी के लिए भी परसेंटाइल नियरली इसके सेम ही है। एससी के लिए परसेंटाइल है 51 परसेंटाइल, एसटी का परसेंटाइल है 37, और जो बच्चा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है उसका परसेंटाइल काफी ज्यादा लो होता है। अब एक हाँ यहाँ पर ऐड करें, जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 90 परसेंटाइल, वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा है 75 परसेंटाइल। तो कितना डिफरेंस है। तो कई बार हमने देखा कि बच्चा एक्चुअली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करता है, बट वो फॉर्म फिल ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं करता, वो जनरल के अंदर फिल कर देता है। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं तो फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही फिल करें। Shahid, can you also explain EWS category to everyone? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसका 10% रिजर्वेशन सरकार ने अलग से दिया है, और यहाँ पर आप कट ऑफ में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए फैमिली इनकम क्लोज टू 8 लाख, मतलब मेरा तो मानना है कि हमारे 90% बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका शायद इनकम 8 लाख से तो कम ही होगा, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। उसमें अगर आपके पास अगर अभी ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो आई गेस फैजान सर उसमें बताएंगे कि you can still apply under EWS, and at that at a later stage you can make your EWS certificate also. और EWS सर्टिफिकेट बनाने में रफली 15 दिन, दिल्ली में हमने देखा कि 15 दिन में ये बन जाता है। पंजाब का में भी we can again confirm and see कितना टाइम लगेगा।
बट कोशिश करें, अगर आप EWS में हैं, आपका इनकम 8 लाख से कम है, तो आप EWS कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करें। हमने कई बच्चों का देखा कि एक्चुअली EWS था, बट उसने जनरल के अंदर फॉर्म फिल किया और उसका स्कोर तो EWS से क्वालिफाई हो रहा है, बट फॉर्म फिल करते वक्त उसने जनरल फिल कर दिया। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं घर जाके बच्चों के लिए पर्टिकुलरली कि वो EWS कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। बाकी जो बच्चा OBC या SC ST है, वो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। मान लो अगर कोई SC बच्चा EWS भी है, तो बट उसको SC कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उनका कट ऑफ देखोगे, जैसे SC का 51 परसेंटाइल है, तो ये ±5 to 10 परसेंटाइल आगे पीछे फ्लक्चुएट करता है। मान लो SC का 51 है, तो ये मैक्स 60 तक जाएगा, ये 65, इसके बियॉन्ड कट ऑफ नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, जहाँ सबसे कम कट ऑफ जा रहा है, उसी के अंडर फॉर्म करें। मान लो एक बच्चा ST भी है और वो EWS भी है, उसको कोशिश करना चाहिए वो ST के अंदर ही फॉर्म फिल करे। तो हर्षित सर, एक बार SC और OBC का भी आप मार्क्स में दिखा दें कि अगर SC कैटेगरी में 51 परसेंटाइल कट ऑफ गया था, तो 51 परसेंटाइल में कितने मार्क्स पे बच्चे को क्लियर हुआ। हाँ देखो सर, कि बिल्कुल। हाँ, कोई Shahid, students are also asking what is PWD? ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हैंडीकैप्ड बोलते हैं बच्चों को, कि ये डिफरेंटली एबल्ड, किसी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो PWD के अंदर फॉर्म फिल करता है। PWD में सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा, मतलब ये स्कूल टीचर्स या प्रिंसिपल्स के लिए भी है, कि आपका अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है PWD या हैंडीकैप, उससे तो फॉर्म जरूर फिल कराएं। वो बस फॉर्म फिल कर देगा तो वेरी हाई चांसेस कि उसका JEE क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी कम कट ऑफ जाता है इस कैटेगरी का। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज भी किया है। अब जनरल देखोगे 90 परसेंटाइल है, वहीं ST में 37 परसेंटाइल है, और PWD में क्लोज टू 1 परसेंटाइल। मतलब काफी आराम से, कई बार सीट्स ही खाली जाती है। हमने देखा है कि काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स खाली जाते हैं क्योंकि PWD के अंदर कोई अप्लाई नहीं करता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल्स या स्कूल्स की मैं कहूंगा कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, दे शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म अंडर PWD। अच्छा सर, एक बार आप OBC और SC का भी एब्सोल्यूट मार्क्स में बता दें। तो मैं अक्सर जैसे बोलता हूँ कि हमारे जैसे अवंती के भी आप सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देते होंगे 15 दिन में, तो कई बच्चों के टेस्ट स्कोर कम आते हैं, तो टीचर्स भी मुझे फोन करके बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो काफी डिमोटिवेट हो रहा है, उसका स्कोर कम आया है। बट अगर आप JEE का आप कट ऑफ के हिसाब से अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका स्कोर खराब नहीं आ रहा है। जैसे मान लो एक मैम ने पूछा था कि हमारे बच्चे के तो सिर्फ 80 मार्क्स आए, तो आप बोल रहे हो कि 80 मार्क्स पे उसका NIT मिल जाएगा। तो एक्चुअली दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर बच्चा वो रिजर्व कैटेगरी का है तो 80 मार्क्स पे भी वो NIT में इंजीनियरिंग कर लेगा। हाँ, और कंपैरेटिवली अवंती का जो पेपर है वो एक्चुअल JEE से थोड़ा टफ ही रहता है। ज्यादातर कोशिश हमारे यहाँ ये रहती है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा JEE मेंस से अपर रखें। तो अगर आप लोग बच्चों JEE मेंस का 2024 का भी पेपर देखोगे, एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपको अपने आप को भी चेक करना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, तो आप एक लास्ट ईयर का कोई भी एक पेपर डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करके देखो 3 घंटा, उसका स्कोर निकालो कि आपको कितना, बिना तैयारी के भी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो फिर आप खुद ही सोचना कि अगर आप तैयारी कर लोगे नेक्स्ट 65 डेज प्रॉपर्ली, तो आपका स्कोर कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाएगा कि 2024 का पेपर कैसा आया था, 2024 के पेपर में हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, आप अलग अलग मतलब शिफ्ट के पेपर को अगर आप सॉल्व करके देखोगे, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि पूरा पेपर टफ नहीं आता है। उस पूरे पेपर में कुछ पोर्शन हमेशा इजी रहता है, कुछ पोर्शन मीडियम लेवल का रहता है, कुछ पोर्शन टफ लेवल का रहता है। आपको टफ की तरफ जाना ही नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं तो बच्चे पेपर ही छोड़ देते हैं कि शायद हमसे ना हो पाए। ठीक है, आपको पूरे जो 30 क्वेश्चन है, उन 30 क्वेश्चन के अंदर ही देखना है कि हमें कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। हाँ, अब जैसे कि कट ऑफ की बात यहाँ पे चल रही थी, तो मैंने अभी बताया था कि जो 90 परसेंटाइल जो कट ऑफ था 2023 का, उसमें अगर आप ध्यान से देखो पेपर का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ठीक ठाक आया था, मीडियम हार्ड लेवल की तरफ आया था, इसलिए कट ऑफ लगभग यहाँ पे गया था। तो यहाँ पे जो मार्क्स था, देखिए आप यहाँ पे 90 परसेंटाइल पे लगभग 82 मार्क्स था, 82। तो यहाँ पे मान लो एवरेज आप 85 मार्क्स मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे 85 मार्क्स, और वहीं पे अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये मार्क्स आपको बहुत ज्यादा रिड्यूस होके 65 या 60 to 70 मार्क्स तक ही आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे, और इसमें अगर नीचे जाएंगे हम तो आपको 40 प्लस मार्क्स ही आ जाएगा यहाँ पे, खासकर इसमें। मतलब मार्क्स जैसे जैसे आप कैटेगरीज में डाउनवर्ड जाते जाओगे, आपका मार्क्स और रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे आपका लगभग
अभी मैं जैसे मैंने बताया था 70 to 80 मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स और रिड्यूस होता जाएगा, तो यहाँ पे नियरली हाफ की आ जाएगा, 30 to 40 मार्क्स की अगर बात करूँ, तो पूरे पेपर में अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, चार क्वेश्चन फिजिक्स में, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, या 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे अगर पर सब्जेक्ट कर लें, तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन यहाँ वाले बच्चों को तो बहुत ही कम करना, अगर आप प्रॉपर्ली एक एक दो क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लोगे पीडब्ल्यू की कैटेगरी में, तो आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और आपको सीट भी मिल सकती है। अच्छा, और एक चीज यहाँ ऐड करना मैं जरूरी समझता हूँ कि जैसे होता है ना, कई बार बच्चे क्लास में डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, कोई जनरल का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई SC ST का है, कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है। कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे एक दूसरे को, तुम्हारी कैटेगरी में तो बहुत कम कट ऑफ जाता है, तो ऐसा कभी भी अपने कलीग को, फ्रेंड को नहीं कहना। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हम चाह रहे हैं कि आपकी नॉलेज बढ़े कट ऑफ्स के बारे में, बट डोंट जज ईच अदर। आप सब एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, एक ही जैसी क्षमता वाले बच्चे, बट कभी भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना, क्योंकि ये कानूनी जुर्म भी होता है कि अगर कोई किसी कैटेगरी का नाम लेके किसी पे कमेंट करे, तो ये चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको। हर्ष सर, वी कैन गो अहेड। हाँ, ओके, ये 2024 का कट ऑफ था। ये PDF मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अब मिड नवंबर पे हम आ चुके हैं ऑलरेडी, और जनवरी मिड तक हमारे पास टाइम है, तो नियरली 2 महीने का समय है। और 2 महीनों में 2 मंथ्स में 25 ओवरऑल, जैसे किसी में 22 23 चैप्टर्स होते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं मानूं 25 चैप्टर फिजिक्स में, 25 चैप्टर केमिस्ट्री में, 25 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में, ओवरऑल 75 चैप्टर है पूरे 11th और 12th के मिला के, ठीक है। उसमें भी क्या आप कर सकते हो, कितना आपको करना है, वो उसकी भी मैं एक आपको आपके ग्रुप्स में PDF शेयर करूंगा, जिसमें आपको हाई वेटेज चैप्टर और कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करना ही चाहिए, और कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको ये परसेंटाइल से एक आइडिया लग गया होगा कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब पूरा पेपर आपसे हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपने प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा, ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन से आ जाता है, SC और ST कैटेगरी का बच्चा अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी पर सब्जेक्ट कर ले, OBC कैटेगरी का बच्चा 6 क्वेश्चन भी पर सब्जेक्ट कर ले, तो उसका कट ऑफ एडवांस के लिए क्लियर हो जाता है। और आप ज्यादा करो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। हाँ, लास्ट ईयर और इस ईयर में थोड़े बहुत जेई में चेंजेस आए। एक चेंजेस ये आया कि पहले जेई एडवांस को 2 ही बार अटेम्प्ट किया जा सकता था, इस बार आप जेई एडवांस को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मान लो किसी कारणवश आपकी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, आपका पहली बार में जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास 2 चांस और दिए मिल गए। पहले 2 ही अटेम्प्ट थे, इस बार 3 अटेम्प्ट हो गए। मेंस के लिए अभी भी 2 अटेम्प्ट ही है, तो जो बच्चे अभी अटेम्प्ट करें अगले साल फिर से वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत चेंजेस इस साल जेई मेंस में किए गए। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले आपको 30 क्वेश्चन आते थे, उसमें आउट ऑफ 25 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार आपको क्वेश्चंस 25 ही है, और 25 आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, एंड आउट ऑफ 25 आपको देखना। अब मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प बता देता हूं कि कैसे इस चीज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रेलेवेंट कंटेंट, ठीक है। अब सिंस नंबर ऑफ डेज हमारे पास बहुत कम है, और उन कम दिनों में कैसे हमको तैयारी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट पूरे नेट पे या फिर अलग अलग जगह अवेलेबल है, चाहे गूगल पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। उसमें से कौन सा करना चाहिए क्या नहीं, एक तो रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज आप तैयारी करो, ठीक है। और अब है ना, बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ते ही जाते हैं, फॉर्मूला याद कर रहे हैं, थ्योरी याद कर रहे हैं, लेकिन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सॉल्विंग भी साइमल्टेनियसली करना होगा, तभी जाके आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। मतलब ऐसा मत करना, ज्यादातर बच्चों के साथ मैंने देखा है कि वो लोग कौन से मतलब याद करते जाते, कॉन्सेप्ट याद कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन बाद में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस आप करते रहो। कैसे करना है उसके लिए भी मटेरियल अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो हम हेल्प करेंगे। ऑर्डर मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग करना है आपको। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी अब सिंस टाइम हमारे पास कम है, तो ज्यादातर आप ध्यान दो PYQs पे। वो भी PYQ कौन से, लेटेस्ट पिछले 2024-2023 के लेटेस्ट चैप्टर वाइज PYQ पे ही आप ध्यान दें कि उन चैप्टर वाइज PYQ को हम सॉल्व करें और टेस्ट प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें। देखिए टेस्ट, अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट को देते टाइम भी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है।
टेस्ट देना सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ 3 घंटे बैठ के आपने टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद, हाँ जिसके भी क्वेश्चन है थोड़ी देर में लेता हूँ, 1 मिनट। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। पूरे पेपर में आपने जो जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें से मान लो आपने फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बचे हुए क्वेश्चन सारे छोड़ गए, तो बचे हुए क्वेश्चन को आपको ढंग से देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े और उनमें क्या कॉन्सेप्ट था। सेकेंडली, हर टेस्ट के बाद आप ये भी देखो कि आपसे उस टेस्ट में क्या मिस्टेक हुई है। देखिए पूरी इस प्रिपरेशन में जो नेक्स्ट 65 डेज है बच्चों, उसमें जो टेस्ट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। हर टेस्ट हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी हो, आपसे बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस ये देखना है कि मैं कैसे भी करके इजी क्वेश्चन को पिकअप करूं, क्योंकि कोई भी पेपर पूरी तरह से कभी भी टफ नहीं बन सकता। जेई का रूल है कि कभी भी पूरा पेपर टफ नहीं बनाएगा। अगर मान लो मैं मैथ्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, या फिजिक्स की बात, कोई भी एक सब्जेक्ट की बात करें, तो मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन है तो उन 25 क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज ईजी होगा, इजी क्वेश्चन का होगा, कुछ परसेंटेज मीडियम लेवल क्वेश्चन होगा, कुछ परसेंटेज हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है कि आपको कैसे भी करके इन क्वेश्चंस पे टारगेट करना है। आपको इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है, ये लास्ट के लिए रखना, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इन क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है। कैसे भी करके इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला भी पता होगा, कॉन्सेप्ट भी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो आप इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए आपका फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सजेशन भी देता हूं बच्चों को कि बहुत सी बार आप प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स बना लो, एटलीस्ट शॉर्ट नोट नहीं तो फॉर्मूला नोट्स तो बना ही लो। जितने भी आपके चैप्टर है, जिन जिन चैप्टर में आप स्ट्रांग हो, ठीक है, जो जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ ये 12 के पोर्शन अभी हमने रिसेंटली किया, स्कूल में भी हमने पढ़ रखा, 11 के कुछ पोर्शन ये मुझे अच्छे से आते हैं, एटलीस्ट उनका फॉर्मूला नोट्स बना के डेली बेसिस पे रिवाइज करो। क्योंकि आपको अगर वो जो इजी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको एग्जाम में समय फॉर्मूला भी अगर याद रहेगा तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट में ऐसा होगा, तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पोर्शन आपका इजी क्वेश्चन का होगा, कुछ मीडियम का होगा, कुछ हार्ड का होगा। तो आपका पहला टारगेट यही होगा कि आप इजी वाले को पहले अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम वाले को, और फिर लास्ट में हार्ड वाले। अब जो बच्चे हुए आपके टेस्ट भी होंगे, जो भी संडे जब भी आपके टेस्ट होते हैं अवंती के, या फिर जो भी आप टेस्ट दोगे फुल सिलेबस पेपर, या फिर जो भी आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना कि मुझे पूरा पेपर अगर नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं इजी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। इजी क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक्स नहीं करना है, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को मुझे प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है और फाइनल आंसर मुझे लाना है। फिर पेपर अटेम्प्ट होने के बाद आप ये देखना कि उस पेपर में आपसे क्या क्या गलतियां हो गई, कि इस पेपर में मैं फॉर्मूला भूल गया, कॉन्सेप्ट भूल गया, फिर जो भी गलतियां, उनको गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए वापस अगले टेस्ट में उस गलतियों को रेक्टिफाई करना। और पीवाईक्यू, अभी लास्ट की 65 डेज में मेजरली आपका ध्यान पीवाईक्यू पे होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पीवाईक्यू के अंदर भी आपको अभी के लिए इजी मीडियम लेवल के ही पीवाईक्यू करो, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है, हमें 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट नहीं करना है। सिंस आपके पास टाइम कम है, इसलिए जो भी पीवाईक्यू आप अटेम्प्ट करो उसमें जो इजी मीडियम लेवल है, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप कैसे भी करके अपने इजी मीडियम लेवल के पीवाईक्यू फिनिश करो। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप हार्ड लेवल पे जाओ। अच्छा, पीवाईक्यू, हाँ जी सर, जैसे पीवाईक्यूज ये लिंगो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कोचिंग में, बट कई बच्चों को शायद पीवाईक्यूज का पता ना हो, तो इलैबोरेट अगर कर दें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले 3-4 साल में जितने भी पेपर हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। और इसमें भी कोशिश करना बच्चों के 2024 लास्ट ईयर, 2023 ये पिछले 2 साल, ये मिनिमम टारगेट आपको होना चाहिए कि एटलीस्ट पिछले 2 साल के पीवाईक्यू आप अटेम्प्ट करो। अच्छा, ये अगर आपको मटेरियल चाहिए तो हम अवंती की तरफ से प्रोवाइड भी हो जाएगा, और बाकी गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है सर। इसमें हम क्या करें, जैसे इनका पेस प्लेटफॉर्म है तो वहां पर हम ये पिछले 2 साल के पेपर अपलोड कर देंगे, जहां से बच्चे या टीचर्स डाउनलोड कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जैसे सर ने ये बताया ना कि एग्जाम में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली इजी मीडियम क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। हार्ड क्वेश्चन करने से आपका रैंक इंप्रूव होता जाएगा। मतलब आप अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो एनआईटी में जाओगे, एनआईटी हो तो आईआईटी लेवल का सॉल्व करोगे, बट रैंक इंप्रूव करना है तो हार्ड क्वेश्चन, बट इजी मीडियम क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करने, तभी आपका जेई क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यू कैन गो अहेड। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है, अगर नेक्स्ट 65 डेज अगर आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिए तो आपका जो चीजें हैं, आप कहीं ना कहीं स्कोर स्टैंड कर सकते हो। मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने पहली बात यही कही थी कि पहले एकदम आप रिलैक्स रहें, खुद पे भरोसा रखें। ऐसा नहीं कि आपने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं किया है, आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आप खुद का एनालिसिस करोगे, बहुत सी बार बच्चों को डिमोटिवेशन यही रहता है कि सर हम तो बहुत वीक है, या हमसे जेई लेवल क्वेश्चन नहीं हो पाता, थोड़े बहुत वो देख के ऐसा कर लेते हैं। आप लिटरली बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जरूर करना। 2024 का कोई भी पेपर उठा के देखना, उसमें से
पूरा पेपर में सॉल्व करना, सिर्फ ये टैगिंग करना कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है। तो आप खुद देखोगे पूरे पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। वो देखने के बाद अपने आप अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना के उन फॉर्मूला को भी रिवाइज करोगे और इन इजी मीडियम लेवल को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, अच्छा सर, इसमें ऐसा भी होगा जैसे मान लो मैं एज ए स्टूडेंट पेपर देख रहा हूँ, अब हर्षित सर ने बोला है कि ये क्वेश्चन इजी है, पर मुझे तो वो हार्ड ही लग रहा है। तो मुझे इजी क्वेश्चन हार्ड तब लगेगा जब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। बट सर बता रहे हैं कि जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जैसे आप स्कूल की पढ़ाई भी अगर अच्छे से किए हैं तो आपको इजी क्वेश्चन इजी ही लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में आपको इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगे या हार्ड लगे, बट आफ्टर ए वाइल जब आप 15 दिन 20 दिन तैयारी करोगे अच्छे से, तो आपको एक्चुअली इजी क्वेश्चन इजी ही लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो लाइक स्टेज ऑफ प्रेपरेशन, कि शुरू में ऐसा नहीं कि इजी बोल दिया तो सारे बच्चों के लिए वो इजी है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो डेफिनेटली इजी आपको इजी लगेगा। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो अभी तो ऐसा हो सकता है कि मुझे इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, बट आफ्टर सम रिवीजन, आफ्टर आई स्टडी प्रॉपर्ली, तो मुझे इजी क्वेश्चन इजी ही लगेगा। तो ये प्रेपरेशन के स्टेजेस होंगे। एक चीज और इसमें मैं ऐड करूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, टिप और है। जैसे मान लो आप वीकली वाइज अगर देख रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई वीक में संडे को टेस्ट है, उस संडे के टेस्ट के लिए मंडे से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो उस संडे का जो टेस्ट का सिलेबस है, तो पहले आप देखो कि उसको तैयारी आप कैसे करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू के 3 दिन तक तैयारी करी, फिर एक दिन आपका रिविजन का पूरा होना चाहिए। पर पूरे वीक में एक दिन ऐसा रखना जिसमें आप जो अब तक पढ़ लिया है उसका पुराना रिवाइज करो। क्योंकि होगा क्या, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पुरानी चीजें इकट्ठी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगले नेक्स्ट 65 डेज में आप पढ़ते गए 2-3 वीक्स बाद बहुत सारा आपने चैप्टर्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। तो आप वीक में एक दिन ऐसा रखना जिसमें आप पूरा रिवाइज करो, कि जो भी अब तक मैंने पढ़ चुका है उसका मैं फॉर्मूला रिवाइज करूं। और संडे को आपको वीक में एक पेपर तो कम से कम देना है, ज्यादा मत देना, लेकिन मिनिमम 1 पेपर पर वीक आपको देना है। और एक वीक में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने अब तक जो पढ़ रखा है उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम हम शेयर भी करेंगे आपके साथ, लेकिन मेजरली ये था। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, पूरी तरह से स्टार्ट करना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो अब तक था उसको हटाओ। और कब से स्टार्ट करना है, कल से ही और आज से ही स्टार्ट कर दो। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, एटलीस्ट कुछ स्टार्ट करो। आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि पहला अटेम्प्ट होने के बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट वापस आएगा, एक चांस और मिलेगा आपको। नीट वाले बच्चों को तो नहीं मिलता, लेकिन जेई में एक चांस और अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से आएगा। तो एटलीस्ट आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रिपरेशन की हेल्प मिलेगी। ठीक है, अचीवेबल है, ट्राई करो, इसको स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप एक बार पूछ लीजिए। मेजरली जो मेरा एक समराइज अगर मैं करूं बच्चों, ये सेशन रखने का रीजन ये था शाहिद सर का भी और हम सबका भी, कि आपको एक सही पिक्चर दिखा दे कि इतना टफ नहीं है। कट ऑफ मेजर था कि कट ऑफ दिखाने का कारण और परसेंटाइल और रैंक अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा नहीं कि अनअचीवेबल है, वो अचीवेबल है। बस प्रॉपर्ली आप नेक्स्ट 65 डेज प्रॉपर्ली तैयारी करो, पीवाईक्यूज पे फोकस रहो, पेपर को बहुत अच्छे से देना है आपको। ठीक है, इन पेपर्स को देख के उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। हाँ, अब किसी का अगर कोई डाउट हो तो कुछ अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है वो अभी हम बताएंगे, कौन सी वेबसाइट से कौन सी लिंक पे क्लिक करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो अभी हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। बट अगर कट ऑफ के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी सर, आपने बताया कि जेईई एडवांस के 3 अटेम्प्ट हो गए अब। हाँ, तो सर वो जो अटेम्प्ट्स हैं वो लाइक जैसे एज वाइज अब वो है या फिर 1 ईयर के 3 अटेम्प्ट हो गए? मेरे को वो नहीं समझ आया कि जेईई एडवांस के अटेम्प्ट्स कैसे हुए हैं। मतलब हम जैसे मान लो मैंने इस साल का मेंस क्लियर कर लिया, हाँ, तो मैं क्या 3 बार एडवांस दे सकता हूँ? हाँ, मतलब जैसे मान लो आपने मेंस इस साल क्लियर कर लिया, आपने एडवांस के लिए अपील किया और आप एडवांस इस बार मान लो क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप अगले साल फिर से दे सकते हो। मेंस के लिए 2 अटेम्प्ट ही है। ठीक है, आप उस मेंस के स्कोर पे 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, मतलब वो एक के बाद 3 कंसेक्यूटिव ईयर में आप अटेम्प्ट दे सकते हो। लास्ट मान लो इस साल आपका मेंस क्लियर हो गया, एडवांस आपने अपीयर किया, एडवांस आपका क्रैक नहीं हो पाया, तो आप नेक्स्ट ईयर वापस से एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। और फिर मान लो एक बार और नहीं हुआ तो तीसरी बार फिर से एडवांस अपीयर कर सकते हो। सर मतलब अब मैंने इस बार का मेंस दिया, हाँ, तो अगर मेरा मान लो मैंने इस बार नहीं दिया एडवांस, मैंने अगले साल का देना है, तो एक अगले साल का मेंस करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मेंस तो देना ही होगा आपको।
आपको जो तीसरा अटेम्प्ट आप एडवांस को दोगे ना, जब 2 मेंस के अटेम्प्ट आपके ऑलरेडी हो जाएंगे तब आप नहीं दोगे, आप उस प्रीवियस स्कोर यूज कर सकते हो। लेकिन अगले साल अगर वापस आप अपीयर करोगे तो आपको मेंस तो वापस देना ही होगा। सर एडवांस के अटेम्प्ट 3 कैसे हो गए? फिर तो एक ही अटेम्प्ट हुआ मेरे पास उसी साल का। नहीं तो आपको चांस मिल रहा है ना वापस से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने इस साल एक बार एडवांस दे दिया, फिर अगले साल फिर से आपने एडवांस दिया, फिर मान लो 2 बार देने के बाद आपको दोनों बार क्लियर नहीं हो पाए तो तीसरी बार एक और आपको चांस मिल जाएगा कि आप दे सकते हैं। ओके, मतलब मेरे को एडवांस में अगर मैं देना है तो मेरे को उस पर्टिकुलर ईयर का मेंस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स क्लियर, कट ऑफ क्लियर करके फिर आप अपीयर कर सकते हो। आपका कट ऑफ क्लियर होगा तो ही आप एलिजिबल होगे एडवांस। जैसे मैंने अभी कट ऑफ बताया था कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका 91-92 परसेंटाइल क्लियर हो जाता है, या एसटी कैटेगरी में आपका 40 परसेंटाइल, 30 या 40 परसेंटाइल क्लियर हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपको उस साल देना है एडवांस के लिए। हाँ, इसको आसान भाषा में ऐसे समझाएं कि मेरा जो मेंस का स्कोर है, साल में 2 बार मेंस का एग्जाम होता है, अगर मेरा इस बार मेंस क्वालिफाई है तो मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हूँ। बट ऐसा नहीं है कि इस बार मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया और अगले साल एडवांस दे रहा हूँ। तो अगले साल अगर एडवांस देना है तो अगले साल का मेंस दोबारा मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए सर, अगर हम जैसे आपने बताया अभी 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर रैंक पुश करने के लिए कोई क्वेश्चन हम श्योर नहीं है, अभी 50% है, अभी सही हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो रिस्क कितने क्वेश्चन का लेना चाहिए? देखिए जैसा कि मैं वो कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको टारगेट यही रखना है कि 30 to 35 क्वेश्चन प्लस ट्राई कर लेना है। अगर पेपर का लेवल ज्यादा टफ रहा तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ रिड्यूस हो जाए, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहा तो आपको हो सकता है 3-4 क्वेश्चन और बढ़ाने भी पड़े अपने एंड। ठीक है, अगर पेपर इजी लेवल का है तो फिर आपको टारगेट अपना 35 क्वेश्चन प्लस रखना है। ठीक है, इसके हिसाब से। अगर आप ये पूछ रहे हो कि कितना रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क मतलब ऐसा लेना कि जिसमें ऐसा भी मत लेना कि बिल्कुल रिस्क ऐसा मत लेना कि आपका मान लो कि बिल्कुल आप श्योर नहीं हो और ज्यादा नेगेटिव कर रहे हो। नेगेटिव बहुत कम करना है, ये हाँ, इसमें जनरली जो एडवाइस रहता है, जैसे हर्षित सर का भी वो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का नहीं मारना है। जब आपको लग रहा है कि यार मेरा जो कैटेगरी कट ऑफ है वो क्लियर होता जा रहा है, जैसे मान लो अगर जनरल कैटेगरी है और पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आया है, तो 30 क्वेश्चन हो गए, तो कोई ऐसा टेम्पटेशन नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग में जाएं, तो उल्टा लॉस हो जाएगा। अगर आपके मान लो सेम एससी कैटेगरी है, आप 20 से 25 क्वेश्चन सही कर रहे हो और बाकी क्वेश्चंस के बारे में श्योर नहीं हो, तो डोंट अटेम्प्ट दैट। बट अगर आपका क्वेश्चंस जो आपको 20 चाहिए और आपके 10 ही हो रहे हैं, उस केस में आप another 5-6 क्वेश्चन जहां आपको लग रहा है ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है, उस केस में आप जा सकते हो एडिशनल क्वेश्चंस के लिए। बट जनरली कभी भी ऐसा एडवाइस नहीं किया जाता है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप रेंडमली आंसर कर दो। दैट्स इट, कंप्लीट नो। सर मैं स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं ज्यादा स्कोरिंग? ओवरऑल में अगर आपको बताऊं, कुछ टॉपिक रहते हैं जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। लेकिन एक एडवाइस ये होता है कि आप कोई भी चैप्टर कंप्लीटली ना छोड़े। अगर जैसे कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जिनको आप एटलीस्ट स्कूल लेवल जरूर करें, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर टॉपिक आता ही है। कोई चैप्टर ऐसे रहते हैं जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा अच्छे से करना है। और ऐसे टॉपिक्स पे पहले कंसंट्रेट करना जो रिलेटिवली इजी हो। मैथमेटिक्स की अगर आप बात करें तो जैसे अगर मैं बात करूं 3D की, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का अच्छा एक चीज सब लोग ध्यान रखना, जेईई मेंस का सिलेबस प्रॉपर्ली देख लेना। जेईई मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा पिछले 2 साल में रिड्यूस हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने सिलेबस किया, स्टेट बोर्ड के हिसाब से सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे पोर्शन अगर स्टेट बोर्ड में है और एनसीईआरटी में अलग अलग है, तो आप पहले जेईई मेंस का सिलेबस बहुत प्रॉपर्ली देखना, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन डिलीट हो चुका है पिछले 2 साल में। तो आपको सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो मैथ्स में बात करें तो 3D हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऐसे टॉपिक है जो थोड़े इजी भी हैं, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन आपको ओवरऑल एक ये चीज ध्यान रखना, हर चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। कुछ चैप्टर जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चैप्टर कंप्लीटली कोशिश करना कंप्लीटली ना छोड़े, एटलीस्ट उसका बेसिक एनसीईआरटी लेवल या आपका जो भी टेक्स्ट बुक लेवल उसके फॉर्मूला आ जाए, ताकि आपको अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सको। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला सारे चैप्टर के करके जाओ, और कुछ चैप्टर जो आपके स्ट्रॉन्ग जो है उसको थोड़ा और अच्छे से करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ
सर जैसे किसी बच्चे ने जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है बट उसका EWS है, तो वो बाद में कोई करेक्शन टाइम आएगा उसके लिए? करेक्शन विंडो इसके लिए मुझे श्योर नहीं है, मैं ये इसके बारे में हाँ फिजान सर जो अभी सेशन लेंगे आपको फॉर्म फिलिंग का, वो ये चीज आपको बता। हेलो सर। हाँ हाँ सर मैं पूछना चाहता था कि अगर मान लो हमारा जेई मेन क्लियर हो गया और हमने एडवांस में एनरोल हो चुके हैं, तो अगर हमारा एडवांस क्लियर नहीं हो पाया तो क्या हम जेई मेंस के मार्क्स पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका देखिए एडवांस का जो स्कोर है वो सिर्फ आईआईटी के लिए होता है, मतलब जितने भी इंडिया में आईआईटी के कॉलेज है वहां पे सिर्फ एडवांस का स्कोर एलिजिबल है, और मेंस का स्कोर बाकी सारे कॉलेजेस हैं, जितने भी एनआईटी है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे सब में जेई मेंस का स्कोर ही चलता है। एडवांस का स्कोर आईआईटी के लिए होता है। तो अगर आपने मेंस का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर किया है, मतलब अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको जितने भी इंडिया के कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। एडवांस का स्कोर सिर्फ आईआईटी के लिए होता है। ओके तो सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम फैजान सर का फॉर्म फिलिंग का सेशन होगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क योर टीचर्स एंड द टीचर्स कैन रीच आउट टू अस। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ जेई ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ जी? हर्ष जैसे वो स्कूल में वो टॉप 70% स्कोर कर रहे हैं, तो क्या उनके चांसेस हैं कि वो क्लियर कर पाएंगे? हाँ देखिए अगर जैसे अगर मैं 12th के कट ऑफ बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में आपको 75 परसेंटाइल लाना होता है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में, तो मतलब मिनिमम आपको 75% स्कोर करना आपके बोर्ड्स में, ठीक है। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 65 स्कोर करना है आपके 12 बोर्ड्स में। अब देखिए अगर मान लीजिए स्कूल का अभी का परसेंटाइल आपका अगर 70 आ रहा है तो हो सकता है अभी आप मिडवे में तैयारी में, हो सकता है स्कूल का पेपर का लेवल एक्चुअल बोर्ड लेवल से हो सकता है थोड़ा टफ हो, तो अभी भी अगर आप 70 पे हो तो थोड़ी मेहनत और करोगे तो नो डाउट आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ सर आई हैव एन क्वेश्चन। हाँ बताइए जीवन। सर हम कौन सी अटेम्प्ट को प्रेफरेंस दें, जैन की या अप्रैल की? नहीं, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, दोनों अटेम्प्ट देना है। और ऐसा मत सोचना कभी भी कि जनवरी अटेम्प्ट ठीक है अभी तैयारी कम है तो जनवरी अटेम्प्ट ना दें अप्रैल में दे देंगे, ऐसा कभी गलती मत करना। फिर अप्रैल देने के बाद जनवरी अटेम्प्ट आपने दे दिया फिर सोचा अप्रैल ना दें, ये गलती कोई मत करना। आप दोनों अटेम्प्ट दो क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल आपका बेस्ट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जनवरी अटेम्प्ट में आपने मान लो 40 परसेंटाइल भी स्कोर किया और अप्रैल अटेम्प्ट में आपने इंक्रीज कर दिया तो बेस्ट आउट ऑफ 2 काउंट होता है, एवरेज काउंट नहीं होता है। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एक ही अटेम्प्ट दो, आपको दोनों अटेम्प्ट देना है। जनवरी अटेम्प्ट में थोड़े चांसेस रिलेटिवली कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड जाता है, चांसेस ज्यादा है कि आप कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल स्कोर, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। और वहीं पे अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा कंपटीशन आपको बढ़ जाता है। लेकिन आप लोगों को सबको ध्यान देना है जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो दोनों चूज करना, आपको दोनों अटेम्प्ट देना है। क्योंकि होगा क्या, जनवरी अटेम्प्ट में हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो जाए तो आप उसको अप्रैल अटेम्प्ट में सुधार सकते हो, डायरेक्ट अप्रैल अटेम्प्ट देने मत जाना। सर जैसे जैन का अटेम्प्ट हमने मतलब उसका फॉर्म फिल करा तो हमें अप्रैल में मतलब फॉर्म फिल करेंगे? हाँ जो ये अभी फैजान सर सेशन लेंगे उसमें वो बताएंगे। जनरली आप अभी भी दोनों अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर सकते हो और सेकंड अटेम्प्ट का फ्रेश फॉर्म ओपन दोबारा से होता है। तो अभी ठीक है, वी हैड टू मेनी क्वेश्चंस, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। नाउ आई विल रिक्वेस्ट फैजान सर फॉर्म फिलिंग का सेशन लें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बच्चे अभी हम फॉर्म फिलिंग का एक बार समझ लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस। Yeah. Also, Shahid, the schools will get dispersed by 3:20. ओके 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 ठीक है। फैजान सर आप थोड़ा जल्दी अपना सेशन क्लोज करने की कोशिश करें। ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। ओके तो मैं अपनी स्क्रीन फटाफट प्रेजेंट कर लेता हूं और मैंने चैट बॉक्स में भी आपको मतलब हमारा जो फॉर्म फिलिंग का लिंक है वो शेयर किया हुआ है। सेम फॉर्म फिलिंग का लिंक ही हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा इसमें आपको सारी चीजें सेम दिखेंगी जो आप फिल करोगे, ठीक है। और तो ये पीपीटी का पीडीएफ हम आपके ग्रुप्स में आपके टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे एंड देन दे कैन आल्सो शेयर फर्दर विद ऑल द स्टूडेंट्स। यस डेफिनेटली।
तो समझते हैं कि अब जो 2025 का हमारा फॉर्म फिलिंग का स्टेटस है वो कैसे हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। हमारे पास जो ईमेल आईडी है, हमारे पास जो मोबाइल नंबर है, वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसका अभी मैं आगे बहुत मतलब अच्छे से विस्तार में सारी चीजें बताऊंगा, बट फिर भी आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना। यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हैं, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, आपके पास फोटो, सिग्नेचर एंड क्लास 10th की मार्कशीट अपडेटेड होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा करेक्शन का नीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है फिलअप होना और कब खत्म होगा। तो इसका लास्ट डेट है 22 नवंबर। तो आपको कोशिश करना है उससे पहले भी मैं एक बार कहूंगा कि आप 22 लास्ट डेट मत मानो, 20 लास्ट डेट मानो, ठीक है। क्योंकि जो आपकी लास्ट डेट होती है ना, मतलब जो आपका लास्ट का 2 दिन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे फिल कर रहे होते हैं, तो फॉर्म फिल नहीं होता है, कभी कभी फीस फंस जाती है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुला हुआ है और राइट साइड में हमारे लॉगिन का पेज खुला हुआ है। इसके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है। ये सेम वही लिंक है जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है आपके चैट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन फिल करने जा रहे हो तो आपको फर्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बटन देख रहे हो, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन फिर से दिखेगा, जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी, कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आपको आगे वो चीज हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आओगे ना, तो आपको नीचे सारा जो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी है उसका आपको कंफर्मेशन देना होगा। तो कंफर्मेशन देने के लिए ये जो आप रेड से लिखा हुआ देख रहे हो, इस पे आपको टिक मार्क करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मेन यहाँ पे हमारा जो फॉर्म फिलिंग का स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। जेई में 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन, 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एप्लीकेशन एंड थर्ड होता है फी पेमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो डिटेल्स डालनी है वो आपके क्लास 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे डालनी है। जो आपका क्लास 10th की मार्कशीट पे जो जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे आपको एज इट इज डालना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपने पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है ना, आपका जेंडर क्या है वो डालना है। फिर उसके बाद कंफर्मेशन, जो आपने ऊपर डिटेल्स डाली है उसका कंफर्मेशन देना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। इसके अलावा जैसे ना क्या बोलता है कि कभी कभी कुछ बच्चों का होता है कि प्रेजेंट एड्रेस कुछ है मगर परमानेंट एड्रेस कुछ है, ठीक है। तो अगर आपका सेम है तो आप इस लिंक, इस जो आप टिक बॉक्स देख रहे हो, इस पे आपको टैप कर देना है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से सेफ हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई मान लो कि कोई अलग एड्रेस है तो आपको फिर अलग एड्रेस डालना होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं। यहां तक आपका ना, जो आपको मैंने विस्तार ऊपर से बताया कि आपको सर, इसमें जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मान लो घर उनका गांव में है और अभी किसी दूसरे स्कूल में शहर में पढ़ रहे हैं, तो उनका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने ही ओरिजिनल एड्रेस है वहीं पर स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, वहीं वही चाह रहे हैं कि सारे कम्युनिकेशन वहां हो। तो उसमें सेव एज प्रेजेंट एड्रेस कर दोगे जब आपका सेम है, तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए होता है। कई बार बच्चा, मान लो कोई बिहार का बच्चा अभी पंजाब में पढ़ रहा होगा, तो उसका परमानेंट एड्रेस जो डॉक्यूमेंट में वो तो बिहार का है, बट करंट एड्रेस उसका पंजाब का है। बट अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो देन सेव एज प्रेजेंट एड्रेस कर दोगे तो ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, फिल करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, ठीक है, गो अहेड। ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड क्यों बनाना होता है? अब जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पेज को फिल करोगे ना, तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर इज लाइक, वो मान लो आपका यूजर आईडी है, ठीक है। आपको उसी का इस्तेमाल करके आपको टेस्ट देना होगा, उसी का इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट भी उसी से मिलेगा। तो आपको
उसका वो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो याद रखना है। साथ ही साथ पासवर्ड जो यहाँ पे बनाना है ना आपको, पासवर्ड के लिए मैं बहुत एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ कि आप उसको, वो बहुत क्रिटिकल तरीका भी होता है, साथ ही साथ आपको वो हमेशा याद रहता है। तो सबसे अच्छी चीज है कि आप पासवर्ड में अपना नाम लिखो। आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाम है आर्यन, ठीक है, तो आर्यन का ए कैपिटल कर दो, फर्स्ट लेटर जो है, और फिर उसके बाद सारा कुछ स्मॉल कर दो। आप 2 क्राइटेरिया, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसका पासवर्ड बनाने का, वो आपने मैच कर लिया। फिर उसके बाद आपका जो भी कोई ऐसा फेवरेट नंबर है 1 to 10, एग्जाम्पल तौर पे 5 है तो 05 कर लो, ठीक है, 2 डिजिट्स आपने डाल दिया। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो हमारा 3 क्राइटेरिया था वो आपने मैच कर लिया है। अब आपको आखिर में, मतलब जैसे आपने लिखा आर्यन ARYN और 05, फिर उसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल दो। स्पेशल कैरेक्टर में आप @@ डाल सकते हो, आप डॉलर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन दे देना है। फिर यहाँ पे एक तीसरे ऑप्शन में पूछता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन का अगर मैं बता दूं इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लो इसमें पूछा गया कि आपके पेट का नाम क्या है, ठीक है, तो आपने लिख दिया जो भी आपके पेट का नाम है। तो कभी भी अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो तो उससे आप रिकवर कर सकते हो, बट उसके बहुत से और तरीके होते हैं, आप अपने मोबाइल से भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है, तो यहाँ पे कैप्चा मौजूद दिख रहा है आपको, और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है अलग से भी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई एक बच्चा चेक दे दो। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट करोगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करोगे फिर आपसे यहाँ पे एक और कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने जो डिटेल्स डाली है, आपने अपना नाम जो डाला है, आपने जो अपने पिता का नाम डाला है, आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही है क्या। तो सही करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब पे टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने का मतलब ही ये होता है कि आप ये कंफर्मेशन देते हो कि हमने जो चीजें डाली हैं यहाँ पे, हमने जो डिटेल्स डाली है वो एक्यूरेट है, वो एकदम करेक्ट है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP करोगे, उसके बाद जो आपने नंबर वहां पे मेंशन किया था ना, अपना मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा। इसीलिए मैं देखो बोल रहा था कि आपको जो आपका ईमेल आईडी जो आप यूज करोगे, जो आप मोबाइल नंबर यूज करोगे, वो एक्टिव नंबर यूज करना। उसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, क्योंकि अगर एक्टिव नंबर नहीं रहता है, वैसे बहुत से बच्चे हैं ना कि उनके फोन तो ऑन रहता है मगर उनके फोन में बैलेंस नहीं होता है, तो इनकमिंग सुविधा नहीं होती है, उसकी वजह से OTP नहीं आता है। तो वैसा नंबर आपको नहीं डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आप OTP डालोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट जैसे ही आपने करा, रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट हो जाएगा। आपके मेल पे और आपके मैसेज पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपका जैसे ही आपको मिला, आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। उसके नीचे वाले में आपको जो आपने पासवर्ड बनाया आर्यन वाला, मतलब सब आर्यन वाला मत बना लेना, सब लोग अपने नाम के हिसाब से बनाना, ठीक है। आर्यन मतलब पासवर्ड लगा दिया, फिर उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद फिर साइन इन करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना, आपको ये वाला पेज दिखेगा, ठीक है। मैं बता रहा था ना कि आपको 3 स्टेप होते हैं फॉर्म फिल करने के। एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है एप्लीकेशन, फी पेमेंट। तो आप देख रहे हो, पहला आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट वाला अभी बच रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे करोगे, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ 6-7 स्टेप्स होते हैं, मतलब उसमें कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डालनी है, पर्सनल डिटेल्स भी डालनी है, आइडेंटिटी प्रूफ भी डालना है, सब कुछ डालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपका नाम आ जा रहा है, आपका जो डिटेल्स है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल है, वो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद फिर से आपसे कैप्चा डालने को बोलेगा, ठीक है। कैप्चा डाल दिया आपने, फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल में अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका नाम, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके मतलब सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हो। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैटेगरी आपका क्या है, ठीक है। ये आपका 7 4 5 6, हाँ ये देखो 8 नंबर पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो इस बच्चे ने कैटेगरी डाला, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी कंफर्म किया,
एंड फिर उसके बाद आप उसने अपना सर्टिफिकेट आईडी डाला। ये ना इस साल से चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो अभी आपको इस चीज का ध्यान देना है, आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी ऑप्ट कर रहे हो, तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। साथ ही साथ वो जो आपकी जो कैटेगरी प्रूफ मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब इश्यू हुआ, ठीक है, उसको किसने इश्यू किया, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो कि पूछा जा रहा है कि आप एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं। अगर आप रहेंगे तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो ना, आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो मतलब आप प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, रूरल है अर्बन है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे मेंशन करोगे। साथ ही साथ आपने ये जो प्रिपरेशन करी है जेईई की, वो कैसे मोड में कैसे किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने प्रिपरेशन ऐसे किया। जैसे इस बच्चे ने लिखा है ट्यूटोरियल क्लासेस लिया था इसने स्कूल में, ठीक है, और मतलब मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्या रहा है, तो आप यहाँ पे मीडियम ऑफ स्कूलिंग डालोगे। उसके अलावा आप कैप्चा कोड डालोगे। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पूछा जा रहा है कि पहचान चुने। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको आधार कार्ड वहां पे चूज करना है। ठीक है, आधार कार्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका यही एक आईडी प्रूफ होता है जिसको आप आगे जाके, जैसे अभी जो आपका एग्जाम सेंटर जो मिलेगा ना, वहां पे भी आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। ठीक है, तो आप आधार कार्ड चूज करना, उसका यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है और नंबर का कंफर्मेशन दे देना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा करके सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, आप देख रहे हो कि एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता होना है तो वो क्या करते हैं, अप्लाई फॉर में ना वो पेपर 1 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पेपर 2A भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पेपर 2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे होता क्या है, ये तीनों सिलेक्ट करने पे ना, पहली चीज तो देखो अप्लीकेबल आप दोगे तो एक ही एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो। मेजर मैक्सिमम बच्चे बीटेक देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जिनका पैशन होता है कि आर्किटेक्चर में जाना है, बी प्लानिंग में जाना है, वो इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान देना है कि आपको बीटेक ही चूज करना है। पेपर 1 आप 2 अगर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको एट द एंड जब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपकी फीस 1000 से 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है, आपको ये गलती नहीं करना है। फिर उसके बाद सेशन 1 क्लिक करोगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर मीडियम होगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, आप कौन से मीडियम में अपना पेपर देना चाहते हो। इसके बाद आप देख रहे हो आपको 4 चॉइसेस पूछे जा रहे हैं कि आप एग्जाम सिटी या सेंटर आप कहाँ डालना चाहते हो। ठीक है, तो आप जहां पे भी रहते हो ना, ये बेस्ट आपकी स्कूल टीचर बता सकते हैं कि आप जहां रेसिडेंट आप जो है, आप उसके नजदीक वाला जो एरिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लुधियाना में रहते हो, ठीक है, तो आप पहला जो चॉइस डालोगे ना वो लुधियाना डालोगे। ठीक है, फिर लुधियाना के पास में जो सबसे नजदीक जगह है वो दूसरे चॉइस डालोगे। और मैक्सिमम केसेस में होता है कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो चॉइस होता है ना, वही आपको एग्जाम सेंटर में मिलता है। थर्ड एंड फोर्थ वाला कभी बहुत रेयर केस होता है, थर्ड एंड फोर्थ में जाता है। तो आपको इसका जरूर ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड में सबसे नियरेस्ट लोकेशन डालना है, जो आप जहां पे रहते हो, आपको पूरा जो अंदाजा है कि यहाँ पे मेरा सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप अपने टीचर का मदद ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मतलब अपने फादर का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, अपने मदर का ऑक्यूपेशन वो क्या करती हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर आफ्टर दैट फिर से आपको कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट करा, अब आप आ जाओगे एजुकेशन डिटेल्स डालने पे। ठीक है, तो एजुकेशन डिटेल्स में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पहले 10th का मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। ठीक है, तो इसमें आप अपना पास आउट ईयर मतलब आप जो स्टेटस है वो आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग बताओगे कि कौन से ईयर में आपने 10th पास किया, है ना, आपका स्कूल कौन सा था, आपने कौन से स्टेट से अपना स्कूल कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे अब देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं आपको। ठीक है, तो ये अब कुछ बच्चों के यहाँ पे सवाल होते हैं कि हम टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 डालें या 500 डालें। तो इसका ना बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। आप 500 मतलब आउट ऑफ 500 जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं 10th में वो भी लेके कर सकते हो, आप 600 भी लेके कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये एज पर योर नॉलेज है
कि मैंने बता दिया कि आप ऐसे हिसाब से कर सकते हो, मगर प्रिफरेबल होता है कि 500 जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनको आप चूज करो और ऑब्टेन मार्क्स उसका डाल दो, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, वो यहाँ अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ देख रहे हो कि रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर कौन सा, जो आपके 10th की मार्कशीट पे रोल नंबर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। फिर आपको कॉलेज का पिन कोड डाल के आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आप देखोगे कि 10th, हाँ, फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट करा ना, इसी तरीके से आपको 12th का डिटेल्स डालना होगा। तो 12 की डिटेल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग अभी परसुइंग कर रहे हो, मतलब अभी उसको अभी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल्स नहीं डालना होगा। फिर उसमें आपको सिर्फ अपना जो आप 12th कहाँ से पास आउट कर रहे हो, ठीक है, आपका स्कूल नेम क्या है, ये सारी चीजें डालनी होंगी और आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको यहाँ कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एडिशनल डिटेल, ठीक है। एडिशनल डिटेल में क्या पूछता है कि बोलता है कि आप ट्विंस हो, ठीक है, क्या आप ट्विंस हो, और दूसरा आप दोनों अप्लाई कर रहे हो जेईई मेंस 2025 के लिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक, आप यस करोगे। फिर उसके बाद उस ट्विन की भी आपको डिटेल्स डालना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके जन्म स्थान अपना डालोगे, कौन से स्टेट में आप पैदा हुए, कौन से जिले में पैदा हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर डालना है हमें, ठीक है। मैंने बताया सबसे पहले कि आपको जो भी नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो आपका एक्टिव नंबर होना चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा था बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कोई भी रैंडम, मतलब कोई भी घर का नंबर उठा के डाल दिया, अब उस पर ओटीपी नहीं आ रहा था, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को उसको फिर से रीफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। इसमें प्रेफरेबल ये है कि अपने पापा का या अपने मम्मी का जो एक्टिव नंबर है वो आप डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने कैप्चा कोड डाला, आप गेट ओटीपी करोगे। आपने जो नंबर डाला है, नंबर एंड ईमेल आईडी, वो आपके दोनों ईमेल आईडी और ओके, तो ईमेल आईडी का जो ओटीपी आएगा और जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है एंड वेरीफाई एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पे देने वाली चीज है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है, फोटोग्राफ डालना है। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपका फाइल नेम जो है ना, यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ। आई एम श्योर ये थोड़ा लग रहा होगा हेक्टिक बच्चों को सुनने में, बट काफी जगह हमने देखा कि बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो 2 जगह मेजरली स्ट्रगल करते हैं, और उसमें से एक सेक्शन यही है जहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे काफी ध्यान से सुने कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, रीसाइज कैसे करना है, और फिर एक पेमेंट वाला स्टेज आता है। तो ये 2 चीजें हैं जहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। बाकी तो सेल्फ गाइडिंग है, जैसे आपका नाम पूछा जा रहा है तो आप डाल दोगे, पेरेंट का नाम डिटेल पूछा जा रहा है तो आप डाल दोगे। यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिख दिया गया है कि फाइल नेम जो होगा, आपके फोटो का फाइल नेम होगा, वो फोटो होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजे जेपीईजी में होना चाहिए। आपका मिनिमम साइज जो है, मतलब मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज भी बता दिया गया कि 10 से 300 केबी के बीच में ही होना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शाहिद सर, क्या मैं मोबाइल पे रिडायरेक्ट हो सकता हूँ क्या? हाँ, उस पे आप मैं हो सकते हो। थोड़ा और इजीली बता बाकी दूं। बच्चों को जैसा आसान लगे, कई बच्चों को यही आसान लगेगा, वो खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट कई बच्चे जो हैं वो खुद फॉर्म फिल करने में कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंस जी। नहीं फील कर रहे होंगे। दे कैन गो टू ए इंटरनेट कैफे आल्सो फॉर फिलिंग द फॉर्म। हाँ, सो इंटायरली योर कॉल। हाँ, ओके, किसान सर, आप ये स्विच करके दिखा सकते हैं मोबाइल से। जी जी। तो बच्चों, मैं अपने मोबाइल पे जा रहा हूँ। मोबाइल पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मोबाइल से ही वो सारा कुछ करें काम। तो आप इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
Saurabh. Sir, you are on mute. Sir, your mic is mute. अच्छा, अभी am I audible? हाँ, yes. ठीक है। तो देखो, अब आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने बहुत से ऐप्स हैं, ठीक है। एक ऐप पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये माई फाइल्स का ऐप है, ठीक है। बहुत से फोन में फाइल एक्सप्लोरर करके होता है, ठीक है। ये दो तरीके के ऐप्स होते हैं जिसमें आप अपनी फोटोज, अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ठीक है। माई फाइल्स को मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इसमें ना आप फाइल साइज को देख सकते हो। आप इसमें इवन ये भी देख सकते हो कि आपका फाइल कितने MB का है, ठीक है। सारा कुछ इधर आप देख सकते हो। ओके, तो आपको इस वाले ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जैसे आपका एक मान लो उसमें खुलता है फोटो वाला सेक्शन, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल फोटो वाले सेक्शन में जाते हो ना, आप गैलरी वाले सेक्शन में जाते हो, तो ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आप बिलो कॉर्नर में देख रहे हो, राइट कॉर्नर में मैंने मार्क किया हुआ है रेड 3 डॉट पे, वो नहीं आता है, ठीक है। तो आपको 3 डॉट पे जाना है और उस पे आप जब उस पे क्लिक करोगे ना, आपको दो ऑप्शन दिखेगा, रीनेम का, डिटेल्स का। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि आपका जो आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो उसका नाम होना चाहिए फोटो, ठीक है। वो यहाँ से कैसे सही कर सकते हो, रीनेम पे जाके, ठीक है। रीनेम पे आप जाओगे, क्लिक करोगे और उस पे आप अपना इस तरीके से रीनेम कर लोगे फोटो, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। ये आप एक चीज हो गया आपके लिए। सेम आप एप्लीकेबल हो जाएगा सिग्नेचर के लिए, सेम एप्लीकेबल हो जाएगा आपका 10th की मार्कशीट के लिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब आपको देखना है ना कि हमारी जो फाइल साइज है वो कितनी है, ठीक है। मतलब हमने जो चूज किया हुआ है फाइल वो 300 से नीचे KB की है कि नहीं, है ना। तो उसको आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे डिटेल खुल के आएगा, ठीक है, कि आपका जो फाइल नेम है वो क्या है, ये फोटो कब ली गई है, सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे साइज भी दिखेगा। तो इस फोटो की जो साइज है 1.6 है, ठीक है। 1.6 है जो कि एप्लीकेबल नहीं है। अब जो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है। देखो, अभी ना मार्केट में मतलब आपको गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है जिधर आपको कंप्रेस करने का वो टूल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ढूंढते कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको, जो इजी तरीका होता है, ठीक है। आप ना गूगल पे जाओ, अपने क्रोम पे, वहां पे सर्च करो कंप्रेस इमेज फाइल साइज इन KB, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे आप PDF भी डाल सकते हो, आप कुछ भी इसमें अपना मेंशन कर दोगे। आपको जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी ना उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैंने resizepixel.com वाली जो वेबसाइट है इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ना सेम हर वेबसाइट में सेम तरीका होता है, ठीक है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा, ठीक है, आपको कौन सी इमेज को रिसाइज करना है, ठीक है। आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। अपलोड इमेज पे जैसे ही आपने क्लिक किया ना, आपका जो मोबाइल का डेटा है, ठीक है, सेम अप्लीकेबल हो जाता है लैपटॉप पे भी। आप जैसे ही इसको अगर लैपटॉप पे भी करोगे ना, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप डॉक्यूमेंट मतलब अपने जो डेस्कटॉप वर्जन है उस पे आ जाओगे, ठीक है। वहां पे आपको सारी फाइल वाइल दिखने लगेगी कि कौन कौन सा स्क्रीनशॉट है। अब देखो, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने कौन सी फोटो सेलेक्ट की हुई है, अपनी फोटो, जो कि यहाँ पे शो हो रही है 705 KB की, ठीक है। मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे अब कंप्रेस मुझे करना है, तो कंप्रेस का ना यहाँ पे एक नंबर भी पूछता है कि आपको कितना साइज कंप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो मैंने एग्जांपल तौर पे 10 लिख दिया इन KB। अब देख रहे हो इस टूल ने 617 KB की फाइल को 32 KB कर दिया, ठीक है। अब आपका काम हो गया। अब आपका काम हो गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद आपको डाउनलोड इमेज का सेक्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके आपकी फाइल साइज जो फाइल है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यही सेम चीज अप्लीकेबल हो जाएगा तीनों चीजों पे, सिग्नेचर पे भी, आपका 10th की मार्कशीट पे भी, ठीक है। अभी मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूं आपके बाकी स्टेप पे, ठीक है। फैजल सर, इसमें ना टीचर्स इनके जो हैं वो हेल्प कर देंगे फॉर्म फिलिंग के लिए, तो मे बी आई गेस वी कैन ट्राई टू कंक्लूड, क्योंकि 3:20 स्कूल्स का क्लोजिंग टाइम। हेलो। हाँ हाँ, तो मैं फिर से स्टेप पे आ जाता हूँ।
फिजान सर मैं कह रहा था कि इनके ना फॉर्म फिलिंग मेजरली जो है इनके स्कूल टीचर्स कर देंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर कुछ स्टेप है वो हम कवर कर सकते हैं, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, फाइनल सबमिट मतलब मैं अब लास्ट फी पेमेंट वाला बता देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आपका जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो गया ना बच्चों, अब आपको फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो पे एग्जामिनेशन फी आ रहा है। ठीक है, इस बच्चे के केस में 1000 आ रहा था, क्योंकि ये बच्चा जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, आपके केस में आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। पे एग्जामिनेशन पे आप जैसे ही गए, आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना। प्रोसीड फॉर पेमेंट में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसबीआई मॉप्स का। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यूपीआई वाले सेक्शन पे जाना है। आपको कोई भी डेबिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, आपको डायरेक्ट यूपीआई पे जाना है। यूपीआई पे जाने के बाद आप एक पेज ओपन होगा, पेज के जस्ट नीचे सॉरी, इसमें मतलब ये आप बच्चों की या टीचर्स की अपनी मर्जी है, अगर वो नेट बैंकिंग से करना चाह रहा है डेबिट से। बट फैजान सर का रिकमेंडेशन है कि यूपीआई काफी आसान है, क्योंकि आजकल हम सब लोग यूपीआई यूज करते हैं, तो काफी आसान रहता है, वो यूज कीजिए, वो रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इसका रीजन भी है बच्चों, क्योंकि ना मैक्सिमम केस होता है कि मैंने खुद भी देखा है, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड में ना पैसे फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूपीआई पे आपको जाना है। ओके, हाँ, फिर उसके बाद आपको क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपका एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, और इस क्यूआर कोड को आप किसी दूसरे फोन से स्कैन करना, मतलब आपका कोई दूसरा फोन जो यूपीआई जिसमें आप चलाते हो, आप इसको स्कैन करोगे किसी भी ऐप से, गूगल पे हो सकता है, वो फोन पे हो सकता है। आप इसको स्कैन करके बहुत इजीली, आराम से, मतलब विद इन सेकेंड में आपकी फी पेमेंट हो जाएगी, और आपकी पेमेंट कभी फंसेगी नहीं। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप शायद सर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, एक डाउट है किसी भी बच्चे का। हाँ सर, अगर किसी का डॉक्यूमेंट अगर सेम ना हो, किसी का आधार कार्ड 10th के सर्टिफिकेट से सर चेंज हो डेट ऑफ बर्थ, सर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखो, उस केस में आपको एक्यूरेट डिटेल 10th की मार्कशीट में है या आधार कार्ड में? सर आधार कार्ड का सर मिस्टेक हो गया है, पर 10th का जो है वो करेक्ट है। हाँ, तो आप 10th की मार्कशीट को आप प्रेफर करोगे, और जो आपका आधार कार्ड में मिस्टेक है ना, उसको आप कभी भी चेंज करा सकते हो। ठीक है, आफ्टर फॉर्म फिलिंग भी चेंज करा सकते हो। आपको ये इम्पोर्टेंट है सब बच्चों के लिए। जनरली आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आपके जो क्रीडेंशियल 10th की मार्कशीट में दिए वो सही है या गलत है, वही कंसिडर होगा। तो कोशिश ये करें कि आपके 10th की मार्कशीट में जो डिटेल्स दी हैं वही फिल करें, और 99% केस में 10th की मार्कशीट में सही डिटेल्स होती हैं। आधार कार्ड में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से डिटेल फिल करनी है। सर जैसे आपने बताया था पेमेंट का, सर बस जनरल के लिए 1000 होता कि एससी कैटेगरी के लिए भी? एससी कैटेगरी में 500 है। ओके सर, ठीक है, वो ये चीजें हम अलग से आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, किस कैटेगरी में कितना फी रहता है। बट जैसे एससी का बताया सर ने 500 है, जनरल का 1000 है। फिर लड़कियों के लिए और कुछ 100 रुपया कम रहता है। जनरल कैटेगरी में भी बॉयज है तो 1000 रहेगा, फीमेल है तो 900 रहता है। वो हम एक स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डाल देंगे फी का। जी, तो ग्रुप में आपको एक तो ये पीडीएफ मिल जाएगा ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का, दूसरे किस कैटेगरी में कितना फी है और क्या लिंक पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है। ये सारी चीजें आपके टीचर्स के साथ हम आज एंड ऑफ डे तक शेयर करते हैं। ओके सर। किसी और बच्चे? हाँ बच्चे, ठीक है नवनीत मैम, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, वी कैन प्रोबब्ली कंक्लूड द सेशन। ठीक है। Thank you so much for joining Shahid sir and also Faizan sir and Harshit sir. It's a great help from your side for sure. But then again sir, हमारी शाहिद से requirement वही रहेगी कि जो भी important information है we'll just send it across. Especially fees को लेके बहुत सारे questions आ रहे हैं and how to fill the form वो teachers will anyway help. So जो भी questions होंगे we can get back to you. So most of the schools have dropped because it's their dispersal time, so they have just left the meeting. Yeah, and also I request all the students
ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੁਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫॉर joining